Let us start this wonderful morning by praise and worshiping Him. आज की ये सुंदर दिन की शुरुआत हम आराधना स्तुति में शुरू करेंगे In truth and spirit. आत्मा और सच्चाई में Amen. आमेन। Let us open our Bibles to Psalm chapter 28. आज भजन संगीता का किताब हम खोलेंगे चैप्टर 28 From verse 1 to 9. 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। To you I will cry, O Lord, my rock, do not be silent to me. Lest if you are silent to me, I become like those who go down to the pit. हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। Hear the voice of my supplications when I cry to you, when I lift up my hands towards your holy sanctuary. जब मैं तेरी दुआएं दूं और तेरी पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। Do not take me away with the wicked and with the workers of iniquity, who speak peace to their neighbors, but evil in their hearts. उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बात तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। Give them according to their deeds and according to the wickedness of their endeavors. Give them according to the work of their hands. Render to them what they deserve. उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। Because they do not regard the works of the Lord, nor the operations of His hands, He shall destroy them and not build them up. वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। Blessed be the Lord, because He has heard the voice of my supplications. यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song I will praise Him. यहोवा मेरा बल और मेरा डाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। The Lord is my strength, and He is my saving refuge of His anointed. यहोवा अपनी प्रजा का बल है और अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे Save your people and bless your inheritance. Shepherd them also and bear them up forever. हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने नीच बाग के लोगों को आशीष दे। उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray in truth and spirit. आइए हम प्रार्थना करेंगे आत्मा और सच्चाई में। Thank you, Jesus, for this wonderful time you have given us, our Father. धन्यवाद यीशु सुंदर समय जो आपने दिया प्रभु। Lord, thank you for what you have done in our lives, Lord Jesus. जो कुछ भी कार्य आपने हमारे जीवन में किया उसके लिए धन्यवाद। Lord, thank you for keeping us safe throughout the week. पूरे हफ्ते आप हमें सुरक्षित रखे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते As हैं। this virus is still outside, Lord Father. प्रभु जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी महामारी बाहर है। Thank you for keeping us under your precious wings. प्रभु आपने हमें आपके पंखों तले रचा है, रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus, for shedding those precious blood on the cross of Calvary. प्रभु धन्यवाद करते हैं कलवरी के क्रूस में आपने अपना बहुमूल्य लहू को हमारे लिए बहाया। You showed your love on the cross. प्रभु आपने अपना प्रेम क्रूस के द्वारा दिखाया। Because of that we are saved. और आज उसके कारण हम सुरक्षित हैं। Thank you, Jesus, for protecting us in every way possible. और हर एक तरीके से आपने हमें बचाया है, उसके लिए धन्यवाद। Whatever calamities or whatever problems we faces, your hand is upon us, Lord God. हर समस्या में, हर तकलीफ में आपका हाथ हमारे संग है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। You're like a shepherd who takes care of his sheep. प्रभु आप ऐसे चरवाहा हैं जो अपने भेड़ियों की रक्षा करते हैं। Lord Jesus, please let us not be the goats but the sheep. प्रभु हम बकरी न बने लेकिन भेड़िए बने इस दुनिया में। Because as you have said, at the end times you will separate the sheep and goat. प्रभु आपने कहा कि अंतिम दिनों में आप बकरी और भेड़ियों को अलग करेंगे, आपने कहा वचन में।
Help us to be holy in your sight, Lord. प्रभु आपकी आंखों के सामने हम पवित्र बने। Do not forsake us. हमें त्याग न दीजिए Do not प्रभु। leave us behind, Lord. हमें पीछे न छोड़िए यीशु। Help us, Lord Jesus, to obey your command. आपके आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमें मदद कीजिए। Help us, Lord Jesus, to worship you and praise you. हमें आराधना और स्तुति करने के लिए हमें मदद कीजिए। I pray for all the evil spirits who ever try to interfere in our lives and bind them in the name of Jesus. और हर एक दुष्ट आत्माओं जो हमारे जीवन में खिलवाड़ करता है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको बांधते हैं और बाहर निकालते हैं। Whoever watches this live stream, आज जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देखते हैं, let them not go empty-handed. वो खाली हाथ न जाए प्रभु। Bless them, Lord God. उन्हें आशीष कीजिए। As however the devil tries to attack us, you will protect us. प्रभु जैसे भी शैतान हमारे सामना करे, लेकिन आप हमारी रक्षा कीजिए। Keep your angels in charge over us, Lord Jesus. आपके स्वर्गदूत को भेज के हमें संभाल के रखिए। Protect us from top to bottom, left, right, and front to back. आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से आप हमें सुरक्षित रखिए। Thank you, Jesus, is going to do so. धन्यवाद यीशु, आप ऐसे करेंगे। As the worship team will lead us to worship, जैसे आराधकों को हमें चलाएंगे इस आराधना में, bless them, Lord God. उन्हें आशीष कीजिए। As they take us through worship, let us see you in them, Lord Jesus. जैसे वो आराधना में चलाएंगे, हर एक जन आपको महसूस करे और देखे प्रभु। Let them feel your presence, Lord Jesus. आपकी उपस्थिति को वो अनुभव करे यीशु। I pray for the pastor as he shares his word. जब हम पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, जो संदेश को बांटेंगे, Bless him, Lord God. उन्हें आशीष कीजिए The प्रभु। word he shares, let it be touched in every family who watches this जब live वो stream. प्रचार करेंगे, संदेश बांटेंगे, मांगते हैं हर एक परिवार को आप छुए यीशु। Let them receive something new today. आज एक नए आशीष को प्राप्त Bless them, करें, Lord God. उन्हें आशीष कीजिए। Let them not go empty-handed. खाली हाथ न जाए। Let them feel your presence, Lord Jesus. प्रभु आपकी उपस्थिति का अनुभव करें। Thank you, Jesus, is going to do so. धन्यवाद यीशु, आप करेंगे। Once again, I summon each and every one of us into your hands. एक और बार हर एक को आपके हाथ में देते हैं, You take total आप control. चलाएंगे। In the name of Jesus, I humbly pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Hallelujah. We thank you for joining along with us. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद कहते हैं। इस संडे सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं फिर से। जैसे हम आराधना के लिए तैयार हैं, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरे हृदय के साथ प्रभु की ओर देखेंगे, उनकी राज्य को खोजेंगे। The Bible says, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you." जैसे हम प्रभु की राज्य को खोज रहे हैं, आपका जो भी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करेगा। हालेलुया। पूरी खुशी के साथ आनंद उठाते हुए, because He is worthy, He has given us the grace to see this beautiful day। इस सुंदर सुबह को देखने के लिए हमें ये कृपा दिया है। जैसे हम प्रार्थना के साथ शुरू किए हैं, आराधना के साथ पूरे अपने मन तन whatever we have, जो कुछ भी है हमारे से, सब कुछ से प्रभु की आराधना करेंगे। We'll give God all the glory, honor and praise. As you join us in worship, पूरे हृदय के साथ ताली बजाकर अपने घर पे आप साथ में मिलकर आराधना करें। हालेलुया। आपके परिवार लोगों को साथ में बुलाइए, साथ में बुलाइए। Call all your family and friends, share with your family and friends, so that all of us together can glorify the King of Kings. Hallelujah. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊं प्राण से। साथ मिलके, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊं प्राण से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊं प्राण से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊं प्राण से।
नहीं सोचना चाहिए। अपना और परमेश्वर के सामने आपको पूरे हृदय के साथ उनकी महिमा करना है। हालेलुया। When the Spirit of the Lord was within my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord was within my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. बाइबल कहता है कि इस पूरी दुनिया में उनकी तरह उनके समान कोई नहीं है, कोई योग्य नहीं है। There's nobody worthy. There's no one worthy of his praise. There's no one worthy of his honor. Hallelujah. He deserves all the glory, all the honor and praise. हम जो नहीं कर सकते हैं, जो हम लायक नहीं है, we are not worthy to even come near his presence, but he's given you and me this privilege. उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम उनकी स्तुति और महिमा करें। हालेलुया। पूरे हृदय के साथ जैसे हमने अभी गाया है कि मैं दाऊद की तरह उनकी स्तुति करूंगा, वैसे ही जैसे हम ये आराधना में चल रहे हैं पूरे हृदय के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए, आजू बाजू नहीं दिखते हुए। डोंट लुक एट द सिचुएशंस अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो नहीं, लेकिन पूरे हृदय को, पूरे मन को प्रभु की ओर हम उठाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि प्रभु के राज्य में, in the kingdom of heaven 24/7 the worship is risen. हमेशा स्तुति आराधना प्रभु की राज्य के वो उठ रहा है। वैसे ही उस 24/7 हम भी स्वर्गदूतों के संग उठकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। जैसे हम आराधना करें अपनी आंखें बंद करेंगे और उनके नाम की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। We thank you Jesus. We thank you Lord. You deserve all the glory, honor and praise, Master. Hallelujah. Hallelujah. वचन कहता है कि Father is seeking those who worship Him in spirit and in truth. पिता उन लोगों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की स्तुति करता है। हालेलुया। जैसे आप और हम उनको खोज रहे हैं, वो हमें खोजते हुए आता है। अपने आप को समर्पित करें। Let's surrender ourselves and lift up our hearts and voices to Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's surrender ourselves, saying, Lord, as we come into your presence, in your holy presence, we have liberty, we have freedom. उनकी उपस्थिति में हमें छुटकारा है, चंगाई है, वो विश्वास करते हुए. Let us believe in it, that as you worship the Lord will release His healing power, His touch over your lives. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord.
touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God. Let's lift up our voice and sing your presence. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God. I want to go where the rivers cannot overflow me, where my feet are on the rock. I want to hide, I want to hide, where the blazing fire cannot burn me. In your presence, oh God. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God. I want to hide, but the flood cannot reach me. Hallelujah. May the flood of evil never reach our lives. I want to hide where the flood of evil cannot reach me, where I'm covered by the blood. I want to be with kings. I want to be where the schemes of darkness cannot touch me. In your presence, oh God. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God. You are my firm foundation. I trust in you all day long. I am your child. I am your child and your servant, and you are my strength and my song. You're my song. In your presence, Jesus, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God. In your
In the cleft of the rock, in your presence, oh God, seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God, in your presence, oh God, in your presence, oh God. In your presence, oh Lord, we seek you, we find you, we look up to you, Lord. In your presence, we find our strength, we find our hope, we find our healings, we find our identity in your presence. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, सभी आवाज उठाकर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy. Thank you, Father. And in your presence there is safety, Father. In your presence there is hope. आपकी उपस्थिति में प्रभु आशा है. आपकी उपस्थिति में हम सुरक्षित हैं. आप हमारे शब्द स्थान और ऊंची गढ़ है. संकट के समय में मेरी ओर तो भागो. आपने कहा कि प्रभु संकट के समय में आपकी ओर भागने के लिए और आप हमें उत्तर देंगे, आप हमें सुरक्षित रखेंगे. धर्मी जन की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आप है. आपकी उपस्थिति को समझने के लिए, आपकी महिमा को पाने के लिए प्रभु हम सबको योग्य बनाइए यीशु. आज हम प्रभु स्वर्ग को खोलकर आपकी महिमा से हमारे को घेर लीजिए यीशु. हमारे घरों में आपकी महिमा प्रभु आने दे यीशु मसीह के नाम में. Let your glory come and fill this place, Lord. We belong in your presence. We belong in your presence, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're the one who satisfies us, Father. जो मैंने मांगा है आपके नाम में, वो मैंने पाया है. आइए हम विश्वास के साथ कहेंगे, Lord, whatever I have asked you, I have received it. उन्होंने कहा, ask and you will receive. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. As we seek Him with all our hearts, पूरे हृदय के साथ जैसे उनको खोज रहे हैं, अपने आवाज उठाकर let's join along and sing this song. और कहेंगे, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, आज हमें जिंदा किया है उनकी कृपा की वजह से. हालेलुया. जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे. जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे. तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा. तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा. जो मांगा मैंने, सभी आवाज उठाकर साफ करके कहेंगे, पा लिया तुझसे. जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे. तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा. तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा.
एक तमन्ना है, तेरे समझ रहना है, तेरे प्यार को पाना है अबा खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तेरे रूह से मैं हूँ जुदा, तेरे प्यार में मैं हूँ फिदा प्रभु। साथ मिलके तेरी रूह से मैं हूँ जुदा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तेरी रूह से मैं हूँ जुदा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अबा खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अबा खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अबा खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अबा खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अबा खुदा। अपने हाथों को उठाकर मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अबा खुदा। आइए अपने हाथों को उठाकर पूरे हृदय के साथ let us look up to the Lord and say, Lord, you are my everything. मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अबा खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अबा खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे,
जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। 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 तू मेरा Jesus, तू मेरी जान है खुदा। यीशु की आप हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारी मान है और हमारा सब कुछ है प्रभु। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रभु दुनिया के लोग, दुनियादारी हमारी पहचान को प्रभु दबा देती है। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि हम कौन है आप में। We forget who we are in Christ Jesus. But even today, Father, प्रभु आज का दिन भी हम धन्यवाद कहते हैं कि हमारा पहचान आप में है। Our identity is hidden in Christ Jesus, and we want to thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, that you are a faithful God. That even though we remain faithless, you remain faithful. आपके वचन में लिखा है कि हम अविश्वास योग्य हैं तो भी आप विश्वास योग्य हैं प्रभु पिता। आपने कहा, you said that we shall soar on wings like eagles, we shall run and not faint, Father. प्रभु आज भी हम मांगते हैं वो काम के सम्मान आपके लिए उड़ने के लिए आप कृपा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु हम मांगते हैं जो भी टूटे हैं, जो भी प्रभु निर्बल है, जो भी दबे हैं, हर एक जाने कि आपकी उपस्थिति उनके लिए काफी है, आप उनके लिए काफी है। आपका लहू, आपका नाम, आपकी पहचान हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह हम धन्यवाद कहते हैं। आज भी प्रभु हमारा कुछ भी नहीं है जिस पर हम घमंड करें। There's nothing that is in us that we can boast about, Father. But our identity is hidden in Christ Jesus. Even today, Father, because of your grace and your mercy, because you sent your Son Jesus Christ, today we can call you Abba Father. आज भी प्रभु हम आपको आबा पिता बुला सकते हैं क्योंकि आपने वो कदम उठाकर अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। धन्यवाद यीशु कि आप क्रूस पर हमारे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे और वापस आने वाले हैं। Help us to know, Lord Father, your power and the power of your resurrection. आपके प्रभु पुनरुत्थान का सामर्थ्य को समझने के लिए हम हर एक को कृपा कीजिए, दया कीजिए। हम धन्यवाद कहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हम घटे और आप हमारे बीच में बढ़े, that we might be hidden in Christ Jesus, that Lord Father you will reveal yourself in and through our lives, Father. प्रभु हम आप में छिपे और आप हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट करें। आज भी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक परिवार को आशीष कीजिए प्रभु। आपके नाम की महिमा हर एक के द्वारा होने दे, केवल आपके नाम की महिमा होने दे। आने वाला समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जैसे पासवान वचन बांटते हैं, आप हमसे बात कीजिए प्रभु पिता। Yes Father, you speak to us through your word and through your servant. Let your word, Lord Father, come as manna in our hearts. सुनने का कान और समझने का हृदय हमें दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए। Let your will be done, Father, and let your kingdom come in our midst today. Thank you, Father, for hearing our prayer. We submit this whole time into your hands. You take total control. यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से हम मांगते हैं। Amen, Amen, Amen. हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर भला है। आमेन। हालेलुया। जैसे आप जुड़े हैं, वी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अलोंग विद अस यूट्यूब और फेसबुक में। कृपया अपने कमेंट सेक्शन में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए ताकि प्रेयर सर्विस के बाद हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ताकि वो भी इस सर्विस में जुड़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? एंड वी प्रे दैट जैसे आप तैयार हैं, एक्साइटेड है, जैसे हम भी एक्साइटेड हैं, अपना बाइबल्स लेकर तैयार रहिए कि प्रभु आपसे इस हफ्ते के लिए कितना व्हाट ही हैज brought for us to encourage each one of us. हालेलुया। पूरे तैयारी के साथ रेडी रहिए ताकि प्रभु आपसे बात करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अधिक पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर भलाई परमेश्वर है और अच्छा परमेश्वर है और आपको प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. God is good and He is worthy of all the glory, honor and praise. परमेश्वर आपको हमेशा अच्छा चीज करने के लिए, अच्छे से चीज देने के लिए प्रभु आशीष कर देने वाला है।
He is a God who blesses you with good things always. लेकिन कभी-कभी हम उसमें से पीछे मुड़ के जा रहा है। But many times we turn away from Him. क्यों पीछे मुड़ के जा रहा है? Why do we turn away from Him? ये जानना बहुत जरूरी है। We need to know that. मेरे प्रियो, जो पुराने जमाने से, पुराने नियम से, नया नियम से भी हर जगह से जो शैतान के बारे में हम सीख रहा है। From the Old Testament and New Testament, we keep learning about what the works of Satan is. क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके रहने समय में आपको उससे अलग करने के लिए, उनसे मतलब बाहर निकालने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेंगे। When you try your best to live in the Lord and to do the things that pleases God, Satan always tries to turn you away from Him. बहुत जन ये बताएंगे शैतान कोई है नहीं, ऐसा कोई बोल देंगे। Many people deny the fact that Satan doesn't exist. ये जो पवित्र वचन में जो लिखा है, तो शैतान जो है, क्योंकि काफी शुरुआत से लेके अंतिम तक शैतान है करके वचन में लिखा है। Right from beginning till the end, it shows and says that Satan does exist. आपका मन में अच्छी तरह से जीना है, अच्छी तरह से प्रभु का आगे पालन करना करके आपको मन में है, प्यासा है। You do have the desire that I need to do good things. I want to do good things for the Lord. लेकिन ये जो शैतान आपको अलग तरीके से लेके जाएंगे। But Satan directs you in a different path. लेकिन आपको भी पता नहीं आप किस तरह उसका चाल में गिर जाता है। And you yourself would not be aware of how you fall into his तो आज trap. के जो संदेश जो है प्रभु के नाम से किस तरफ से शैतान से हम विजय पाना है। So today's word is about how you can be overcomers and victorious from the plans of Satan. अगर विजय पाना है तो उनका शैतान का क्या-क्या क्रिया है, क्या-क्या उनका बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। And if you want to turn and be victorious from the plans of Satan, what we are supposed to do, we learn today. हम वचन में पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, ये पृथ्वी में क्यों आया है। We need to know that why did Jesus come here to this world. हम पढ़ेंगे 1 John chapter 3 verse 8। पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 8। अब ये देख लीजिए प्रभु क्यों ये संसार में आया है, आपके और हमें बचाने के लिए जो प्रभु आया है। Why did Jesus come into this world to save you and me? He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से, पहले समझ लीजिए। First, I want you to understand, he who sins is from the devil. क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। मतलब वो शुरुआत से वो पाप करते रहता है, पाप करने के लिए वो सिखाता है, वही शैतान है। And we see from the beginning, Satan has been doing his works. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। यीशु मसीह जो प्रकट हुआ जो है, जो शैतान जो काम है, शैतान की जो क्रिया है, उसी में से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। Jesus, the Son of God, has come to this world to destroy the plans of Satan and save us from the works of his. अब ये सबसे पहले ये आपको पहला माइंड में आप समझते दीजिए। First of all, I want you to remember this and keep it in your minds. और वो क्या करने वाले, पहले पत्रोस 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 5 verse 8। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी मतलब परमेश्वर का विरोधी आपका विरोधी है, आपका विरोधी परमेश्वर का विरोधी है, क्योंकि आप प्रभु का बेटा है, बेटी है। Because you are the child of God, whoever is against you is against God, and whoever is against God is against you. तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, मतलब सिंह के समान, like a roaring lion, इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
वो मतलब समझ लीजिए वचन में लिखा है उसको खाने वाला, मतलब जो फाड़ के खाने के लिए वो घूमते रहता है, ढूंढते रहता है किसको मैं पकड़ूं करके। Here we see that Satan is roaring like a lion, roaring about, seeing who he may devour, whom he may destroy. आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर आप पवित्र जीवन बिताने की समय में आपके खिलाफ आपको किस तरफ गिराना है, किस तरफ उनका चाल चलन में लेके जाना करके शैतान कोशिश करेंगे। And we see that when you want to live a pure life, a holy life, Satan keeps roaring around you. He moves around you to see how he may pull you down and how he may destroy जो you. वचन में वही लिखा वो ढूंढते रहता है, किसका मतलब किसको पकड़ूं, कैसा ले लूं, कैसा इनको प्रभु से अलग करूं करके वो ढूंढते रहता है। The word says that he goes searching around who he may destroy, who he may catch hold of. हमें नेक्स्ट वचन में जो लिखा है, Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. विश्वास में दृढ़ होकर, हालेलुया, आपको विश्वास में दृढ़ होकर रहना है, एकदम स्ट्रांग रहना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको विश्वास में हमेशा रहना पड़ेगा। Be steadfast and be strong in the faith on the Lord. यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे थे। वचन में जो लिखा है शैतान को मतलब वो शेर का सम्मान, लायन का सम्मान आएगा, लेकिन आपको डरना नहीं, परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करके आपको उसके सामने करना है, मतलब उनके सामने खड़ा रहने के लिए आपको रहना पड़ेगा। You need to not be afraid, but you must be bold enough in faith to face the works of Satan, to face the challenges of Satan. क्योंकि वो ये शैतान नहीं है। Because there's not just one devil. आप ये समझ लीजिए, आपके जीवन में मतलब समझ लीजिए सबके जीवन में अलग अलग कार्य करके प्रभु का रिलेशनशिप से आपको अलग करने के लिए, शैतान करने के लिए बहुत ज्यादा कार्य करते रहता है। There are so many evil powers and evil spirits that in different forms will come to destroy you in different directions, different ways. अभी जो शैतान बोलो तो कौन है? Now if we say who is Satan, जो पुराना नियम में जो लिखा है, जो लूसीफर प्रभु का स्तुति आराधना जो करता था और प्रभु के खिलाफ वो सोच लिया, प्रभु का बारे में उल्टा मतलब गलत सोचा, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग के राज्य से नीचे फेंक दिया है। who was Satan? Satan was the archangel Lucifer, and who was in heaven worshipping before, and as he even just thought against the Lord Most High, and he was thrown from the heavenly kingdom, he was thrown down away from heaven. ये सबको मालूम है। We all know this. आप समझ लीजिए ये अकेले नहीं गिरा, उनके साथ में जो बहुत ज्यादा स्वर्गदूत शैतान के पीछे पड़ा और वो भी सब मृत्यु में आ गए हैं। He was not the only one who was thrown from heaven. There were many other angels with him that were thrown. वचन में लिखा है एफेसियन की किताब में 6 अध्याय 12 वचन। Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, अपना जो अभी जो लड़ाई है समझ लीजिए मांस के लोगों के साथ में नहीं है, क्योंकि आप ये समझ लेंगे आपका किसी के साथ में जो लड़ाई जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। You should understand that your wrestling is not against somebody, but it is against it's not against flesh and blood. हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, Principalities, अधिकारियों से, powers, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, ये संसार के अंधकार के जो हाकिमों से समझ लीजिए, जो संसार पे अंधकार में जो चलाने वाला चल रहा है उनका सामने है। rulers of the darkness of this age, of this world, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से,
दुष्टता का आदमी का सेना, मतलब पूरा Against- एक नहीं है, पूरा सेना है, हजारों करोड़ जो है, जो शैतान के साथ में जो गिरा है, उनके साथ में, तो आत्मा के साथ में आपका लड़ाई है। against spiritual hosts. That is not one, but there are crores and millions of them against those spiritual hosts of wickedness आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। in the heavenly places. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो इसमें क्या करवाना है समझ लीजिए, परमेश्वर का वचन को हम लेने से हम जीत सकते हैं। So we can overcome this by the word of God. अभी ये देखिए जो बताया है वर्ष 12 में जो लिखा है, जो पूरा आत्मा का सेना, मतलब समझ लीजिए एक एक व्यक्ति एक एक काम करने वाला है। You should understand that one spirit does one works. एक शैतान का आत्मा क्या करेगा, एक समझ लीजिए कुछ किसी को खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए, मर्डर करने के लिए वो करने वाला है। One evil spirit's main work must be to destroy somebody. और दूसरा जो आत्मा है, दूसरा मतलब अलग अलग कार्य करने वाला, हर आत्मा अलग अलग पूरा काम करने वाला है। And other spirits have other roles to play. अब इसके बारे में हमें जानना है, आप कौन सी तरीके से आप जी रहा है। So we need to know what kind of life do you live. अब शैतान को जो क्रिया है, शैतान को जो आत्मा के साथ में आप जुड़ा है क्या? You need to think, are you associated with works of Satan? उसके बारे में प्रभु आपसे बात करना है। And let the Lord speak to you through और it. जो शैतान की जो क्रिया है, शैतान की जो चाल चलन है, उसी में से हमें बचना है, हमें भागना है, हमें उसी से विजय पाना है। We need to escape and get rid of the works of Satan and get away from it. मेरे प्रियो, आज जो प्रभु आपसे जो बात करता है, आपके जीवन में नया परिवर्तन होने वाला है। Today, as the Lord speaks to you, we want the Lord to do a new thing in your life. और परमेश्वर के साथ आपका प्रेम और आपका भरोसा और मजबूत होने वाला है। And your love towards God is going to increase more and more. और इसीलिए आज जो प्रभु जो आपसे जो बात करता है, उत्साह के साथ आप सुनिएगा। And as the Lord speaks to you, please be excited and encouraged so that you और will hear जो this. लिख कर रखा है, लिख कर रख दीजिए। And who's taking notes, you can take down your notes. क्योंकि बार-बार इसके बारे में आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। Because you need to know about this in future also. आप ये समझ लीजिए, शुरुआत में जो आदम एव का जो बेटा है, जो काइन आबेल जो है, दोनों उसने प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए जो आया था, और परमेश्वर ने आबेल का जो बलि को स्वीकार किया, तो काइन को गुस्सा आया। And we see that in Genesis, in the book of Genesis, that Cain and Abel, the two brothers, had gone to offer sacrifices to the Lord, and both had offered sacrifice, but the Lord had liked only the sacrifice of Abel. अब समझ लीजिए, जो जलन का आदमी, जलस होने वाला है, तो मतलब जो अपना भाई को जलन करके उसको खत्म कर दिया है। And we see that Cain was jealous of his brother Abel, and that jealousy led him to kill Abel, his brother. ये जो है जेलसी कर देने वाला आत्मा है। And this is a spirit of jealousy. मतलब जो गुस्सा और जलन होके क्या करना, आखिर में मर्डर, मतलब दूसरे के खून कर डालता है। And this jealousy that is of anger and hatred that led to murder. हम ये देख लीजिए, जो शाऊल राजा के समय में, And we see in the time of King Saul, और जो प्रभु ने उनको आशीष दिया, अभिषेक किया, लेकिन राजा प्रभु का आज्ञा पालन नहीं किया है। we see that King Saul was anointed by God, was chosen by God to lead the people, but he turned away from God. और उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया है। And he did not obey the word of God. और इसीलिए जो वचन में जो लिखा है, obedience is better than sacrifice करके जो लिखा है, That is why वचन में लिखा है बलिदान, से ज्यादा, आज्ञा पालन बलिदान से ज्यादा बेहतर है. मतलब आप समझ लीजिए, आप प्रार्थना करते होंगे, आप कलीसिया में आते होंगे, हर चीज करते हैं, लेकिन प्रभु का आज्ञा पालन नहीं किया तो सब कुछ वेस्ट होने वाला है। You may do everything, you may go to church regularly, but if you don't obey God, everything is vain.
और वो जो उसी समय में जो पूरा आत्मा, जो पूरा करने वाला आत्मा है, वो शाऊल राजा का अंदर आ जाता है। And we see that that very time the evil spirit had entered King Saul. हम वचन पढ़ेंगे, पहले सामुएल 16 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 वर्स 14। But the spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। जो परमेश्वर का जो आत्मा शाऊल के पास था, उसके अंदर था, We see that the spirit of the Lord was in Saul, और जो परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा उनको छोड़ के बाहर जाने के बाद, and we see when the Holy Spirit of God left him, जो पूरा करने वाला आदमी आत्मा जो है, शैतान का जो आत्मा है, शाऊल के अंदर घुस गया। and we see that a distressing spirit entered King Saul. आप ये समझ लीजिए, उसकी बात तो क्या हो रहा था, बार बार वो अंदर से उनका आत्मा से वो तकलीफ से गुजर रहा था। And after that we see that very often he was being troubled by this evil spirit. और तब जो दाऊद को बुलाया था आके उनके सामने प्रभु का नाम से वो गीत बजाने के लिए, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्ले म्यूजिक करने के समय में वो शैतान का आत्मा बाहर जाता था। And we see that they had called David to play the music so that whenever he plays, this evil spirit would flee from King Saul. वर्स 23। And so it was, whenever the Spirit from God was upon Saul, that David would take a harp and play it with his hand. Then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता। अब ये समझ लीजिए, जो इस तरफ जो डिस्ट्रक्शन करने वाला जो आत्मा है, उसको वो कैसे भाग जाता है, स्तुति आराधना करने का। उसका मतलब जो दाऊद क्या कर रहा था, और किसी को नाम से पुकारा नहीं, प्रभु का नाम से पुकारता था। इसके लिए जो होता रहा है, अब स्तुति आराधना करने के समय में शैतान भाग जाएगा। We see that when this distressing spirit was disturbing Saul, what David used to do, he was not just playing some music, he's a worshipper of God. He was playing and praising God. That caused the spirit from, the evil spirit from Saul to flee away from Saul. हालेलुया। Hallelujah. और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। मतलब जो दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। And we see that this distressing spirit, this evil spirit would go away from Saul. Now, अभी आप बताइए, जो शाऊल के अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो चला गया, वापस आया कि नहीं आया उनके पास? We see that, now you yourself answer it. When this evil spirit used to go out, did that come back again? वो वापस आ गया। Yes, it did come back again. बार बार आता था। It used to often keep coming back to Saul. क्योंकि उसका अंदर अभी पवित्र आत्मा नहीं है। Why? Because he was not filled with the Holy Spirit. अभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के समय में जो दुष्ट आत्मा बाहर जाएगा। If the Holy Spirit enters your life, that's when the evil spirit will go away from your life. इसका मतलब क्या है? What does this mean? आपको पवित्र आत्मा को हमेशा संभाल कर रखना जरूरी है। You बहुत need to जरूरी keep है। the Holy Spirit within you. और वचन में लिखा है, पहले सामुएल 18 अध्याय वर्स 5 में ले लेंगे। So David went out wherever Saul sent him and behaved wisely. And Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servant. जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को बेचता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अब ये देख लीजिए, जो लड़ाई करने के लिए अभी पहले शाऊल राजा जाता था, लेकिन अभी दाऊद जा रहा है। शाऊल का बदला सब जगह में लड़ाई करके
बुद्धिशाली के सामने, बुद्धिमान के माप में सब जगह विजय पा पाया था। We see that in the place of Saul, David started going for all the wars and he was in great position. बुद्धिमानी के साथ काम करता था, अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। इस तरह सब जन उनको बहुत पसंद किया था दाऊद को। We see that David was behaving very wisely and everybody started accepting him. और जो दाऊद इस तरह विजय पाके आने के समय में वो जो संसार में सब स्त्रियों लोग और पुरुष लोग क्या करता था? And when David used to go for the war and come back victoriously, what did the men and women of the place do? Verse 7. So the women sang as they danced and said, Saul was slain his thousands and David his 10,000s. और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ वह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। अब ये देख लीजिए जो सच बात यही है, दाऊद मतलब 10,000 के ऊपर को उसने विजय पाया है। We see that this is the fact that David was 10 times victorious than Saul. और तुरंत इनके ऊपर गुस्सा आ गया राजा को। Immediately King Saul was angry. और उसी समय से अब देख लीजिए जो अब कंटिन्यू करें verse 8। We read in Hindi. तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। अति क्रोधित हुआ। That Saul was very angry. यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। अब देख दीजिए मतलब जो वो ये नहीं समझ रहा है, वो हम युद्ध में नहीं गया है, मेरा मतलब जो दाऊद जाके विजय पा के आ रहा है वो सोचा नहीं है, ये समझ मेरे से ज्यादा इनका नाम आ रहा है। As it was written here that then Saul was very angry and the saying displeased him and he said, they have said ascribed to David 10,000s and to me they have ascribed only thousands. We see that here Saul was not worried that or thinking that David went in his place, that he himself, King Saul, did not go for the war, but somebody else went for him. He didn't see that, but he was more angry on David who went for the war. और verse 9। इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। मतलब वो हमेशा इसको दुश्मन का माप में सोच रहा था, उसको प्रेम नहीं कर रहा था, उसको कैसा भी नीचे गिराने के लिए वो सोच रहा था। And from that very time, Saul eyed David as when he can destroy him, when he can bring him down. अब ये देख लीजिए जो अच्छा ही कर लिया दाऊद ने। We see that David did good things for Saul. उसका बदला शाऊल राजा ने उसको बुरा ही कर रहा है। And what did Saul do? He was doing bad in return. अब ये तुरंत क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे में क्या हो गया था, बस 10। And immediately what happened? दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। And it happened on the next day that the distressing spirit from God came upon Saul. And he prophesied inside the house. Okay. आप ये देखिए क्या लिखा है, जो दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर आ गया है और वो अपने घर के अंदर क्या कर रहा है, वह घर के भीतर नबूवत करने लगा। नबूवत मतलब भविष्यवाणी कर रहा है। Prophesied, meaning he started prophesying about things. Saul started अब prophesying. ये बताइए जो भविष्यवाणी करने वाला वो कौन है अभी? Now you understand who is the one who prophesies और वो उसका अंदर कौन सी आत्मा है, and which spirit is within him, और जो बुरा आत्मा किस तरह से भविष्यवाणी करेंगे, and what kind of prophecy will an evil spirit do? ये गलत मतलब जो पाप का बारे में बताएंगे, खून का बारे में बताएंगे, उसको अलग अलग जो मन में होता है वो उसका बारे में बताएंगे। It will talk about hatred, it will talk about murder, it will talk about only evil things. लेकिन यही तो आज के कलीसिया में, आज का बहुत जगह में यही हो रहा है, जो पवित्र आत्मा जो नहीं है तो भी जो दुष्ट आत्मा का नाम से भरा हुआ है वो भविष्यवाणी करेगा तो वो गलत भविष्यवाणी करने वाला है। Even today in many parts, in many places,
such deceiving spirits have entered the churches also, where they start prophesying. Now, when such evil spirits enter a person, what kind of prophecy do you expect to come out? अब ये देख लीजिए, इस तरफ से जो शाऊल का अंदर जो बुरे आदमी जो था, उसी समय में दाऊद अपने म्यूजिक बजा लेता था. And we see that at this very time, when Saul started prophesying, that David was playing his harp. Verse 10 and 11. दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा. दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था. तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धस जाए. भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया. भाले की चलाया, 2 बार दाऊद ने बच गया है. We see that Saul cast his spear towards David and David escaped it twice. ये देख लीजिए, शाऊल के समय में उनको लड़ाई करने फिलिस्तीन का जो आदमी जो है गोलियत आने के समय में 40 दिन आके सामने खड़ा रहता था और प्रभु के खिलाफ बात करता था. प्रभु के खिलाफ जो प्रभु के लोग को ऊपर निंदा करता था. We see that during the time of Goliath, when there was a war between Israel and the Philistines, that 40 days they were quietly listening to Goliath blabbering against God. शाऊल भी युद्धवीर है. And even Saul is a warrior. वो वैसा सादा आदमी नहीं है. He was not just a common man. उनसे नहीं बोला, वो सामने गोलियत जो बता रहा है, हाँ कोई किसी को भेज दे मेरे सामने लड़ाई करने की. लेकिन वही राजा भी सुनते रहता था, लेकिन किसका पास ताकत नहीं है उनका सामना खड़ा रहने के लिए. Though Saul was a warrior, he was a very strong person. But when Goliath was challenging Israelites, when Goliath was blaspheming against God, nobody had the guts to get up and stand against to fight. All were scared. अब ये देख लीजिए, जो उस समय में कोई भी उनको मदद नहीं किया है. And that time we see nobody helped Saul. और कोई व्यक्ति उनको हराए नहीं है. And nobody had defeated Goliath. और जो प्रभु का बेटा, प्रभु के ऊपर जो विश्वास किया है जो व्यक्ति है दाऊद, उन्होंने छोटी उम्र से वो गोलियत को उनको मार डाला है. And we see that this David who had believed in God defeated Goliath in that very young age. और उसके बाद में फिलिस्तीन लोग इसके सामने खड़ा होने के लिए आया नहीं, क्योंकि वो डर गया. दाऊद उनके साथ में था करके. And after that we see that Philistines were afraid to face Israelites because David was there. और जो शाऊल को ये भी पता हो गया ये परमेश्वर का आत्मा दाऊद का अंदर है करके उनको कंफर्म भी हो गया. Saul was aware that the spirit of God was within David. और आप ये समझ लीजिए, ये विजय जो करवा के दिया परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा. And we see that God gave victory through David. और उन्होंने क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए. मैं लड़ाई में नहीं जा रहा हूँ, मेरा बदला जो प्रभु ने जो उसको दास को भेजा है हमारा पैरस में, और उनके द्वारा मुझे विजय मिलना करके प्रभु को उन्होंने धन्यवाद करना चाहिए था. And Saul should have been thanking God that in spite of myself not going for a war, God arranged somebody to go in my behalf and we have been victorious. और बहुत बार दाऊद को मारने के लिए शाऊल राजा ने कोशिश किया है. Instead we see that Saul was looking when and how many times he could kill and destroy David. वो कहाँ भाग रहे, सब जगह में उनके पीछे पड़ रहा था. Wherever David used to run, there Saul used to chase him. तो ये जो गुस्सा का आत्मा, जो बदला लेने वाला आत्मा और जो जलन सी देने वाला आत्मा किसका बस है, वो इस तरफ कार्य करने वाला है. वो कभी अच्छा काम करने वाला नहीं है. Those who have the spirit of hatred, spirit of jealousy will never do good things. वर्स 14 में लिखा है, And David behaved wisely in all his ways, and the Lord was with him. और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था. यहोवा उनके साथ साथ था, मतलब
परमेश्वर यीशु मसीह आपको साथ रहने दें, आपका हर चीजों से विजय पा सकता है। The Lord was with him and he was victorious. If God is with you, Jesus is with you, you will be victorious in everything that you do. अभी ये जो बुरा आत्मा किस तरह काम कर रहा है? Now, how do these evil spirits work? मतलब आपको लालची दिखाएगा, आपसे मीठा मीठा बात करके आपको पापों में गिराएगा। He will entice you with evil things. He will entice you with good words, and he will be snatching you away. अब किस तरह से एवा को उसने शैतान ने गिरा दिया? And we see how did Satan tempt Eve? जेनेसिस में जो लिखा है, हवा ने मतलब जो हवा को उसने मीठा मीठा बात किया, मतलब जो ये फल खाने से तुम परमेश्वर के मार्ग में होएंगे, मरने वाला नहीं है करके वो उसके बारे में बता रहा था। We see how sweetly Satan was enticing Eve with very good words, saying, "See how beautiful this fruit is," and tempting her. और उन्होंने वो फल देख के, क्योंकि समझ लीजिए तब तक वो देखती रहती थी, लेकिन जो शैतान ने उनका मन में डाल दिया, उसके बाद में हवा ने पाप करने की शुरू किया है। See, we see that Satan had put it in her mind, and that is what caused her to sin. जो परमेश्वर का जो आज्ञा है उनको तोड़ दिया है। And she broke she disobeyed the word of God. अब ये समझ लीजिए, जो फल को नहीं खाना था उसने खा लिया और अपने पति को भी दे दिया है। The fruit that she shouldn't have eaten, she ate it and even shared it with her husband. और इसलिए जो आत्मा है, फंसाने वाला आत्मा करके शैतान का जो आत्मा के बारे में बता रहा है। And this kind of spirit is a spirit that forces you to sin. अब जेनेसिस में 3 में जो लिखा है, 3 से लेकर 6 बाद में पढ़िएगा। You can read Genesis chapter 3 from 6 onwards later. और ये बुरा आत्मा जो किस तरफ काम करने वाला है, ये जो है आपको जीवन में कभी प्रार्थना करने की नहीं देंगे, वचन पढ़ने की नहीं देंगे। And how these evil spirits work, they won't let you read the Bible, अब they won't let you pray. आप हमेशा काम करने के लिए हम 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा काम करेंगे You'll be ready to work for 10 hours, 16 hours. और कभी प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पर आनंद करना है, तो आपको नींद आ जाएगा। But when you want to meditate the word and pray, then you'll feel sleepy. हमने वचन में पढ़ेंगे आइसाया चैप्टर 29 वर्स 10। यशाया की किताब में 29:10 वचन। For the Lord has poured out on you the spirit of deep sleep and has closed your eyes, namely the prophets, and he has covered your heads, namely the seers. यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। मतलब जो नींद ऐसा आ जाता है, वो मतलब हाथ खोलने के लिए ताकत ही नहीं रहेंगे। So much of sleep, deep sleep on your eyes that you can't even open it. तुम्हारी दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। पर्दा डाला मतलब यही है, जो वचन अपने हृदय में देने के लिए, मतलब रहने के लिए मौका नहीं होता है। And this covering head that God has given is He's not allowed the word to enter you. जो कोई जो वचन सुनने में उनको नींद आ जाता है, वचन के बारे में सोचता नहीं है। There are many who hear the word and they feel sleepy and they don't think about it. और जो किसी को प्रार्थना करनी होती है तो उनको प्रार्थना करने का मन नहीं होता है। And if somebody wants to pray, they don't feel like praying. बाकी सब कुछ करने के लिए उनके समय है। But they have time to do everything else. उनके जीवन में जो नहीं करना है वो करने के भी उनके समय में, लेकिन प्रार्थना करना है, वो वचन पढ़ना है, उनके समय नहीं है, मन नहीं है, नींद आ जाता है, थक जाता है, सो जाता है। People have time to do unnecessary things, but when it comes to prayer and word, they can't spare their time, they can't spend their time for the Lord. ये क्या करता है और प्रभु को और आपको दूर लेके जाता है। And what do these things do? They drive you away from God. और वचन में ये लिखेंगे मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43। मत्ती की किताब 12 अध्याय 43 वचन। When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finds none. जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढ। अब ये समझ, जो अशुद्ध आत्मा मतलब जो इंसान को ऊपर छोड़ के बाहर जाता है,
And we see that when an evil spirit leaves a person, वो कैसे दूसरा आत्मा जाता है बाहर? how does an evil spirit go out of a person? हो सकता है आपके लिए कोई किसी ने प्रार्थना किया होंगे, Maybe somebody prayed over you, आपने प्रार्थना किएंगे or maybe you were praying और आपने मन फिरा होंगे, and you have turned away तो your hearts. जो शैतान का जो चाल चलन है आपको जीवन से प्रभु ने निकाल दिया है, And so we see that God would have removed those evil spirits from your body, और वो शैतान जो बाहर चला गया है, and the evil spirit would have left yourself. तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और वह पाती नहीं। मतलब वो देखते हैं ये जगह एक व्यक्ति की छोड़ के दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा है, उनको जो जगह में कंफर्टेबल नहीं है तो वो घूमते रहता है, ढूंढ And we रहता see है। that this evil spirit, which was removed from the body, goes around seeking where to find. और इसमें वचन में ये इसका मतलब यही है, जो शैतान का जो आत्मा है, जो पूरा आत्मा उनको छोड़ के बाहर जाने के बाद, And we see that when this evil spirit leaves somebody and goes out, वचन में पढ़ेंगे, तब कहती है, मैं अपनी उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। इस जो शैतान जो चला गया, मतलब जो आदमी मन बिराया, जो अपना घर के अंदर सब कुछ जो नहीं चाहिए था सब कुछ जो निकाल दिया और वो सुधर गया, समझ लीजिए। तो so when we see that an evil spirit leaves a person and doesn't find somewhere else to rest in, this evil spirit says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept and put in order. तो ये सब जो वो घर के अंदर जो एम्प्टी मतलब क्या है? पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। And what is this emptiness? That is, the Holy Spirit is not filled there, the Lord is not there. उनके जीवन में चंगाई मिला, आशीष मिला, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर उस घर पर नहीं है। He must have got delivered from sin, and he would have been healed and he would be delivered from this evil spirit, but he was not filled with the Holy Spirit. और जो अशुद्ध आत्मा जो बाहर जाने के बाद वापस आ रहा है, And we see that this evil spirit that left him comes back into him. वो वचन में जो लिखा है वो घर एकदम तैयारी है। And verse 44 says that this house was clean and kept in order, वो पाप करने की तैयार है that it is ready, और परमेश्वर के खिलाफ काम करने की तैयार है। that this body is again ready to sin and do things against God. तो वो क्या कर रहा है? So what does this evil spirit do? Verse 45, then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So shall it be also with this wicked generation. तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं, मतलब अपने से बड़ा बुरी 7 आत्मा, मतलब पहले अभी एक है, पहले घर के अंदर एक था वो इंसान के ऊपर, अभी वो जाके और भी बड़ा 7 बुरे आत्मा के साथ में लेके आ रहा है। We see that this one evil spirit which was before in this person now goes and gets 7 more wicked spirits than himself. और उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अब ये समझ लीजिए, पिछली दशा मतलब जो अभी जो है पहले से ज्यादा तकलीफ में आ गया है। And we see that now the last state of the person is worse than the previous state. अगर मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के ऊपर आप विश्वास करके आप प्रभु के ऊपर मन गिरा के आने के बाद, My dear ones, if you repent and turn yourself and come to the Lord, अगर प्रभु आपको आशीष करेंगे, the Lord will bless you. अगर आपको जीवन में चंगाई हो गया, चमत्कार हो गया, लेकिन आप प्रभु को भूल गए तो और दुनिया का जीवन बिताएंगे तो जो छोड़ के गया आत्मा, जो छोड़ के गया प्रॉब्लम्स वापस आपके जीवन में आता है। You would have been saved, you would have been delivered from all the past wrong things. But if you don't fill yourself with the Lord, the previous spirit that was thrown out will bring more worse situations into your life. आपके जीवन में, आपको हृदय में प्रभु को जगह देना पड़ेगा। You must give place in your heart for the Lord. और आपके घर के अंदर आपको जगह देना पड़ेगा। You have to give place in your house for the Lord. अगर आप इस तरह प्रभु का वचन का अनुसार, प्रभु का नाम के लिए, प्रभु का महिमा के लिए उसको पर विश्वास करके
प्रभु को आप अंदर पाने के समय में, और जो पूरा आत्मा आपका घर पे नहीं आएगा। When you give place in your heart, your house for the Lord, when you fill yourself with the holy word of God, that is when this evil spirit will not be able to enter your life again. वो जन चंगाई मिलने तब तक प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे, लेकिन चंगाई हो गया, उनके जीवन में परिवर्तन हो गया, लेकिन वो प्रभु को भूल जाते हैं। Many people seek the Lord to be healed and to be saved and to be delivered, but once they are healed, they forget the Lord and they go back into their worst situations. अब ये समझ लीजिए, इस तरह जो पूरा आत्मा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। It is very difficult to control such evil spirits वो जो है ये हत्या करने वाला है, because these spirits bring destruction. ये मारने वाला है, They kill. और इसको समझ लीजिए बहुत ज्यादा ताकत है उनके पास। They are very powerful. और आपको ये बताया क्या, आप शैतान भी देख सकता है क्या? Do you know, can you see such evil works, लेकिन evil spirits? वो आपको देख रहा है। But he can see you. आप उनके पास जा सकता है क्या? Can you go to those evil spirits? नहीं, वो आपके पास आ सकता है। No, but that evil spirit can come to you. अगर आपका दरवाजा, आपका हृदय खुला करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। If the door of your hearts is open, this evil spirit can easily enter you. हम वचन में पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 5 वर्स 2। And when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। ये देख लीजिए, जो अभी इसका बारे में आप बाद में पढ़ लेगा, चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ लेगा, इसमें किस तरह जो बुरा आत्मा काम कर रहा है। Afterwards, you can later you read this chapter how and what are the works of such unclean spirit. और ये जो इंसान के ऊपर जो शैतान आने के बाद, And after this evil spirit had entered this person, उनको बहुत तकलीफ दे रहा था। it tortured and tormented this man. उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता था। Nobody could control him. वो अपने आप को मारता था। He used to hurt himself. और उनको कोई भी बंधन में ये लोगन से बांध करके सबको तोड़ के बाहर आता They था। used to tie him in chains, but he used to break open and run away. And और जो वचन में लिखा है, जो प्रभु ये जगह में आने के समय में वो उनको सामने आ रहा है। we see in this word in the Bible, in this chapter, that when Jesus came there, he comes in front of him. और जो वो आके बता रहे, ये प्रभु का बेटा है, मुझे तकलीफ मत दे करके वो बता रहा है। And that man says that you are the son of God, don't come near me. और जो बता रहा है, प्रभु पूछ रहा है उनको, तुम्हारा नाम क्या है? And the Lord asks him, what is your name? वो बता रहा है, मैं लेगियोन करके जो बता रहा है। And he says Legion. और ये जो वचन में जो लिखा है, एक लेजियन का मतलब जो क्या है, 3000 मतलब उससे ऊपर जो है सेना है, उसको लेगियन बोलता है। The word says that the meaning of legion is more than crores, 3 crores above. 3 lakhs, 3000। 3,000, more than 3,000. आप ये समझ लीजिए, इस तरफ जो मतलब एक शैतान आने के बाद वो इंसान कितनी तकलीफ होंगे। अब इतनी शैतान उनका अंदर है, वो Now कितना तकलीफ होगा। you can imagine if one evil spirit is within a person, how troublesome it will be. But when more than 3,000 are there, what would the state of the person be? तो इसका मतलब जो है, वो बात भी करते हैं शैतान, आपको प्रभु के सामने बात भी करते हैं, देख लीजिए। We see that this evil spirit even talks to और Jesus. उनको अपने आप को मारने के लिए, वो मतलब जो इंसान के अंदर है उनको तकलीफ भी दे, मार के मतलब उनको नुकसान पहुंचाता है। And even hurts the person inside whom such evil spirit dwells. और ये जो है परमेश्वर के खिलाफ जो काम करने वाला जो आत्मा है, And such evil spirits that work against the Lord. और ये इस तरफ का काफी जो बुरा आत्मा है, मतलब बहुत जगह अलग अलग मतलब तरीका से इंसान को नुकसान पहुंचने वाला है। There are many other different evil spirits that do different things against people. और ये जो आत्मा है प्रभु के खिलाफ काम करने के लिए, जो अच्छे इंसान को भी गलत रास्ते में लेके जाएंगे। And such evil spirits even turn away good people. और विभचार कर रहा है, मार रहा है, झूठ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, जो पाप है हर पाप ये करते रहता है। And such evil spirits make people commit adultery, commit idolatry, all kinds of sins. जो वचन में जो लिखा है मैथ्यू चैप्टर 13 में जो वर्स 4 में जो लिखा है, तो बीज बोने समय में जो कोई बीज क्या कर रहा है,
मतलब सीड जो है रास्ते में जो गिरता है, वर्स 4 में 13 वर्स 4, Matthew 13:4 says that when the sower sowed his seeds, some seeds fell on the wayside and some seeds fell the other sides. Okay, we read verse 4. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, मार्ग के किनारे में जो गिर गया था, That is one. Some fell on the wayside, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आके जो रास्ते में जो गिरा है, मतलब उसको उठा के लेके गया। and we see that those seeds on the wayside, the birds came and took them away. Verse 19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. जो कोई राज्य का वचन सुनकर, जो परमेश्वर का वचन को जो सुनकर, Whoever listens to the word of God नहीं समझता, वो नहीं समझता। समझ लीजिए, सुनने से सिर्फ नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। वो वचन को अपने हृदय में रखना चाहिए। It's not just important about hearing it, but keeping it in your heart. उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मतलब जो हृदय में जो डाला है परमेश्वर का वचन को, ये जो दुष्ट आत्मा आके उसको लेके जाता है। And the word that was sown in a person, this wicked spirit, evil spirit comes and snatches it away from them. और जो परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन परमेश्वर का वचन को उसका अंदर, उसके हृदय के अंदर स्ट्रांग रहने के लिए मौका नहीं देता है। The Bible says that the word of God is powerful, it can do mighty things, but when it's not sown strong inside, it will be snatched away. अब लूका चैप्टर 13 वर्स 11 में जो 11 से 13 लिखा है, और एक स्त्री 18 वर्ष, मतलब जो दुर्बल करने वाला आत्मा उसको पकड़ा है, वो बंद हो गया था 18 साल से। We see that a woman in Luke chapter 13, that she was tortured by the spirit and she had 18 years of bleeding problem. लेकिन परमेश्वर ने उनको छू लिया, उन्होंने चंगाई हो गया। She was bent for 18 years, but the Lord touched her. समझ, ये जो व्यक्ति, जो स्त्री जो प्रार्थना के लिए हर साल गया होंगे, हर दिन गया होंगे, 18 वर्ष वो प्रॉब्लम में घुसाई थी। And we see that for 18 years, though she was bent, she went for prayers and she went to the temple of God. क्योंकि परमेश्वर को विश्वास किया है। Because she believed in the Lord. अब ये जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का वचन जो हृदय का अंदर जो गिरा हुआ, उसको शैतान ने उसको लेके जाता है। And we see that the word that is sown in the heart, the evil spirit comes to snatch that word from you. तो क्या करना चाहिए? So what should we do? अब कैसे परमेश्वर वचन को स्टोरेज कर सकता है? How can you store God's word in your heart? और जो ड्यूटरोनॉमी जो लिखा है, जो अपने एक लास्ट वचन अपन पढ़ेंगे, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5। हमें क्या करना है, कैसे उसमें से बचना है, कैसा हम इसमें से विजय पा सकता है, शैतान को हम हराने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अपने परिवार को क्या करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय वचन 5। You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीवन से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है, नंबर 1। और जो दूसरे वचन में लिखा है वर्स 6 में, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझसे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन को अपने मन में बने रखना है। So these words which I command you today should be in your heart. और उसके बारे में क्या करना है, वचन में अगले वचन में जो लिखा है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, अपने बाल बच्चों को समझाकर, You shall teach them diligently to your children.
सिखाया करना, दिखाया करना है। घर में बैठे का मतलब जो घर पे बैठने के टाइम में पूरा एंटरटेनमेंट नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, सिनेमा नहीं देखना है, जो ज्यादा समय प्रभु के साथ वचन के बारे में बात करना है। You don't need to spend your time at home just entertaining yourselves, watching TV or anything, or entertaining yourselves, but you have to sit in your house and talk about the word of God. मार्ग पर चलते, जो अब चलने के समय में भी प्रभु के बारे में बात करना है, लेटते उठते, अगर अब सोने के समय में और उठने समय में परमेश्वर के बारे में बताना है, उनकी चर्चा किया करना। मतलब जस्ट परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में आप अपने बच्चों के साथ आप बात कर लीजिए। You must talk about the Lord, about the word of God to your children when you sit in your house, when you walk, when you lie down, when you sleep, when you rise up. All times you need to talk about the word of God to ये them. क्यों इसके बारे में जो प्रभु बात कर रहा है, मतलब जो संसार में अलग अलग तरीका से आपको ऊपर टॉर्चर आएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, कुछ टेंशन रहेंगे, लेकिन उसमें से बचने के लिए आपको हर पल आपको परमेश्वर के वचन के बारे में आपको बात करना जरूरी है। Anyways, in this world, different problems will come facing you, against you, problems and tortures and tensions and all kinds of ways to bring to hurt you. But the only way that you can strengthen yourself is by reading the word and spending more time in the word of God. Verse 8. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, मतलब जो वचन को अपने हाथ में चिन्ह के रूप में बांधना है, मतलब जो है अपने हाथों में वचन लेना है, और ये तेरी आंखों के बीच टिक्के के काम दे। हर टाइम जो परमेश्वर का वचन अपने नजर के सामने लेना है। And we see that the word of God is telling us to bind them as a sign on your hand every time in front of you, and it should be like frontlets between your eyes. और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। घर का चौखट और फाटक मतलब जो क्या है, मतलब आपका घर के सामने दरवाजा रहता है। What does this verse mean? Doorposts of your house means right now the door is in front of you. क्यों परमेश्वर लिखा के रखा है? Why has God taken such an example? आप घर के बाहर जाने के समय में आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। When you have to leave your house, you must open your door. आपको चौखट मतलब दरवाजा जो चौखट में जो वचन लिखता है, And at the entrance of your door, if there's a word, तो वचन को आप सामने पढ़ के फिर वापस बाहर जा रहा है, and you read that word and you go out, वो वचन आपको साथ साथ आपको बचाएंगे। and that word strengthens you. हालेलुया। Hallelujah. जो वचन आपका अंदर रहने के लिए, मतलब जो आप भूल गया तो भी जो दरवाजे के सामने चौखट पे फाटक पे सामने जो लिखा है, वो वचन जो लिखा है वो आपको याद करते रहेंगे। When the word is at your doorpost, that means when you go out, when you come in, you will keep remembering and reminding yourself about the word of और God. अपने घर के अंदर जो अपने पति पत्नी परिवार बच्चों के साथ में बैठ के परमेश्वर के बारे में बात कर लेंगे। And as husband and wife and children all together as a family must talk about the word of God. और जो भी आप जो दूसरा टाइम में जो व्हाट्सएप फेसबुक जो करता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए, लेकिन ज्यादा समय प्रभु के लिए आप करवा लीजिए। You may be spending your time in other things, social things, but spend more time in the word of God. जो इस तरफ से काफी लिखा है, मतलब जो वचन में लिखा है, जो दुष्ट आत्मा आपको और परमेश्वर को अलग अलग करने वाला आत्मा ये संसार में है, लेकिन उसमें बचने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। And to escape from all such problems and temptations and troubles that is attacking by the evil spirits, we need the word of God to strengthen us. जो वचन में जो लिखा है, जो जगह में पवित्र आत्मा है, जो जगह में छुटकारा है, The word says that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जो जगह में परमेश्वर यीशु मसीह है, वो जगह में घर के अंदर शांति रहेंगे। Wherever the Lord Jesus is, that house will have peace. और जो जगह में यीशु मसीह है, वो जगह में शैतान नहीं आ सकते। And where Jesus is,
there the evil spirit cannot enter. आज मेरे प्रियो, प्रभु आपसे जो बात करता है उनकी पहला स्थान दीजिए। As the Lord has spoken today, give him the first place. आप आपके परिवार के साथ पहले यीशु मसीह के पहले स्थान दीजिए। Along with your family, give the Lord the first place in your house. और जो वचन में जो लिखा है, शैतान को है जगह मत दो, आपके घर पे आपके हृदय में जगह ना देना है। As the word says, don't give place for the evil ones in your house. Foothold for the evil ones in your और house. आपके खिलाफ जो कार्रवाई जो करने वाला जो शैतान का जो अशुद्ध आत्मा है, उनके खिलाफ आप विजय पाने के लिए प्रभु के वचन के ऊपर आप विश्वास कर लीजिए। And you need to believe in the word of God to overcome such works of the evil ones. हालेलुया। Hallelujah. आज एक नया निर्णय लीजिए, मेरे जीवन में शैतान को हम जगह नहीं देंगे करके। Take a new decision today that I will not give place for Satan in my life. और पवित्र आत्मा को आपका हृदय में आप हमेशा रखने के लिए आप मदद आनंद कर लीजिए। You need to meditate word so that you can keep the Holy Spirit every time in yourself. और जो Within you. इस तरफ जो जीवन में हर बीमारी से, हर समस्या से, हर तकलीफ से प्रभु आपको चंगाई करेंगे। And the Lord will heal you from and deliver you from all sicknesses and problems. जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनके वचन के ऊपर विश्वास कर लीजिए, और प्रभु आपको और हम सबको जीवन में अनंत काल जीवन देने के लिए वो तैयार है। Believe in the Lord Jesus Christ, and as he has promised that He will give us eternal life. क्योंकि वो जो वचन में जो लिखा है, जो व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास करके मन फिराएंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उनको वो जरूर अनंत काल जीवन देने वाला है। And the word says that those who believe in the Lord, definitely the Lord will deliver them. आपके जीवन में जो शैतान में जो क्रिया, हर क्रिया को प्रभु निकाल के आपको आजाद देंगे। And God will deliver you from all evil powers. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you all are having a wonderful time, especially the word. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब एक अच्छे समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहे हैं। And the word which Pastor had shared is really a wonderful word. और जो वचन पास्टर ने बांटा है बहुत अच्छा वचन है। We should really introspect in our spiritual lives as well. हम सबको अपने आप को जांच कर देखना चाहिए। Though at times we might be filled with the Holy Spirit, बहुत बार ऐसे होता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, but we should not take it lightly. पर हमें उसको आसानी से साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। We should be serious in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में हमें गंभीरता से जीना चाहिए। When we are serious in our work life, जब बहुत बार हम अपने जो कारोबार में बहुत हम गंभीर रहते हैं, at times we really forget our spiritual life. पर हमारा जो आत्मिक जीवन को हम भूल जाते हैं। So are we really enlightened by hearing this wonderful word which क्या हम Pastor आज said? उत्साहित है परमेश्वर के वचन सुनकर? And I'm sure that everyone are blessed. मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग ने आशीष पाया है। So let us look up to the Lord in prayer as we conclude the service. आइए हम सब प्रार्थना करके ये सभा को खत्म करेंगे। Lord, we thank you for this time you have given us. धन्यवाद प्रभु ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया। As we began this worship, Master God, we thank you for the wonderful word which Pastor had shared. धन्यवाद यीशु की जैसे हमने आराधना शुरुआत किया, पासवान ने जो वचन बांटा इसके लिए धन्यवाद। We thank you for the wonderful worship which the worship team has led us. धन्यवाद प्रभु जो आराधक के ग्रुप ने वर्शिप किया उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। We thank you for giving us this day that we would witness and we would share your wonderful word. धन्यवाद प्रभु कि आपने ये दिन हमें दिया कि हम आपके वचन को देखे हैं, सुने हैं और ये दिन को हमने देखा है। Help us to be prepared at all times, Lord. प्रभु वो मदद कीजिए कि हम हर एक बार हम तैयार रहे। In spite of all this pandemic season which we are going through. प्रभु जैसे ये कोरोना का समय चल रहा है बाहर, But you are the Lord who is still in control. प्रभु पर आप अभी भी प्रभु सभी पर अधिकार लिए हैं। Help us to prepare ourselves at every moment in our lives. प्रभु हर एक समय अपने आप को तैयार रखने के लिए हम सबको मदद कीजिए। And help us to be ready at all times. प्रभु हर समय तैयार रहने के लिए आप मदद कीजिए। We thank you for this day you have given us, Lord. धन्यवाद प्रभु ये सुंदर समय जो ये दिन आपने हमें दिया।
And let us be prepared as we go through this entire week. और जैसे ये पूरे हफ्ते में हम चलते हैं, हम मांगते हैं हर एक दिन तैयार रहकर जीने के लिए हमें मदद कीजिए। We pray for all those who are watching us right now. प्रभु जो भी हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray for all those who couldn't make it this time. प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो ये समय बिता नहीं पाए आपकी उपस्थिति में। Lord, we pray for our families, we pray for our friends, Lord. प्रभु हम हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। Set a hedge of fire around our lives आपकी अग्नि से हम सबको सुरक्षित घेर रखिए so that nothing will go in vain, Master. प्रभु, ताकि कुछ भी व्यर्थ ना हो हमारे जीवन में। Let your right hand be upon our lives प्रभु आपका दाहिना हाथ हमारे जीवन पर हमेशा बने रहे, so that we would not be go astray, oh Father ताकि God. कभी भी हम आपसे दूर कभी ना जाए। We thank you for this time you have given us, Lord. धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए जो आपने हमें दिया। We thank you for all the provisions you have provided us in the lives of धन्यवाद our जो lives. भी आपने उपलब्ध हमारे लिए किया। We give you all the glory and honor, Lord, हर एक आदर महिमा आपको देते हैं, because all the glory is yours, oh Father क्योंकि God. महिमा के योग्य केवल आप हैं प्रभु, And we submit each and every one into your precious और hands. हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। We thank you for this time you have given us, Lord. धन्यवाद इस सुंदर समय जो आपने हमें दिया In the प्रभु। name of Jesus, we humbly pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Praise the हालेलुया। Lord. प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आप मेरे पीछे दोहराइए। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा का धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम वह उसकी पवित्र नाम को धन्य कह। धन्य कहे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार और उसके किसी उपकार को न भूलना। को न भूलना। आमीन। आशीष लेंगे। हमें बचाने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भर के जीवन देने के लिए अपने लहू बहाके हर शैतान का बंधन से छूटा करने के लिए जो अनुग्रह करने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और जो अशुद्ध आत्मा को जो बाहर भगा के पवित्र आत्मा से भरने के लिए जो ताकत देने वाला पवित्र आत्मा का सौभाग्य था हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। 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 हालेलुया। 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 प्रभु आपको आशीष देने वाला है, इसके लिए उत्साह के साथ प्रभु को ताली बजा के प्रभु धन्यवाद करेंगे। आमीन।